Welcome you students. In today's class, we are going to learn about PN junction diode. At the end of the class, you will be able to understand what is diode, properties of PN junction, biasing of PN junction, that is forward and reverse bias, and the application of diode. So let's start from what is diode. It is an electronics device created by bringing together a p-type and n-type region within the same semiconductor lattice, which means by joining of p-type semiconductor with the n-type semiconductor, then the diode is formed within the same semiconductor lattice, which means germanium, considering the germanium semiconductor device. So p region is also germanium and n region is also a germanium semiconductor. For silicon semiconductor device, p region is also silicon lattice and n region is also a silicon semiconductor lattice. Now this is the symbol of diode, where the arrow indicates the direction of positive current flow. This is the positive side, this is the negative side. This is also called as anode and this is cathode. So basically a diode is a semiconductor device with two terminals, that is anode and cathode, that allow the flow of current in one direction only. Going to the next slide, that is PN junction diode. In diode, there is two terminal called anode and cathode. At the instant the two material are joined, electron and holes near the junction cross over and combine with each other. Here I am drawing the PN junction diode. इसमें क्या होगा ना, हम लोग एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल को क्या करेंगे, जॉइन करेंगे, जिसमें हम लोग का क्या होगा, टू टर्मिनल. अच्छा, पी टाइप मटेरियल में हम लोग का मेजॉरिटी क्या होता है, होल्स होता है, और एन टाइप में हम लोग का मेजॉरिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है. और माइनॉरिटी क्या हो जाएगा हम लोग का पी टाइप में, इसमें हो जाएगा माइनॉरिटी हम लोगों का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और एन टाइप में माइनॉरिटी क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा, जिसको हम लोग प्लस साइन से डिनोट कर रहे हैं. तो when a p-type semiconductor is suitably joined with a n-type semiconductor, the contact surface is called PN junction. PN junction. मतलब क्या होगा ना, अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं विद द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो ये दोनों के बीच में जो कांटेक्ट सरफेस है ये वाला, उसको हम लोग बोलेंगे पीएन जंक्शन.
एन टाइप सेमीकंडक्टर हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग का एन टाइप में क्या है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है। पी टाइप में हम लोग का मेजॉरिटी क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा। होल्स कम्स फ्रॉम दी पी टाइप। पी टाइप में हम लोगों का क्या है, होल्स है, तो होल्स कम फ्रॉम दी पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड free electron which is from n side cross from n side to p side। मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, हम लोग का p टाइप में जो मेजॉरिटी में हम लोग का होल है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं प्लस साइन से, और हम लोग का n टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो हम लोग का ये जंक्शन है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा ना, ये जंक्शन के इस साइड में जो होल्स है उसके साथ वो अट्रैक्ट होगा। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कंबाइन हो गया, जो कि हम लोग उसको रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन ये होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, सारा हम लोगों का डिफ्यूज हो जाएगा, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन in the n region begin to diffuse across the junction into the p region। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंबाइन होगा होल्स के साथ जो जंक्शन के पास में है, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का डिफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे से क्या होगा, हम लोग का चार्ज लैक ऑफ चार्ज हो जाएगा। मीन्स at the junction free electron have the tendency to diffuse over the n region of holes। This process is called diffusion। Due to this process of diffusion, p side gets more and more negatively charged and while n side get more and more positively charged। अब यहाँ पे क्या होगा ना, हम लोगों का यहाँ पे तो हम लोगों का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव किया पॉजिटिव साइड में, तो ये क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा हम लोगों का, यहाँ पे जो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन था वो अभी है क्या, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जंक्शन के पी साइड में हम लोगों का मेजॉरिटी क्या था, यहाँ पे होल्स था, वो है क्या, नहीं है। मतलब वो इस साइड का एन साइड का जो इलेक्ट्रॉन था पी साइड के होल्स के साथ रिकम्बाइन होके डिफ्यूज हो गया, जो कि यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे इस रीजन में हम लोगों को क्या हो गया, लैक ऑफ चार्ज हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, लैक ऑफ चार्ज, जो कि पहले यहाँ पे हम लोग का मेजॉरिटी में होल्स था एंड ये था इलेक्ट्रॉन एंड पी साइड में होल्स था, दोनों रिकम्बाइन हो गया, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो गया, जो कि न्यूट्रलाइज हो गया और डिफ्यूज हो गया। तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोले। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, क्लियर का फॉर्मेशन होता, मतलब जहाँ पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन था और पी साइड में होल्स था, जो कि वो अभी नहीं है, डिफ्यूज हो गया, तो ये लैक ऑफ चार्ज हो गया। तो यहाँ पे वो एक क्लियर का फॉर्मेशन किया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लीशन, डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन। This depletion region discussed in the next slide, that is this one. Depletion region is the region having no free carriers। मीन्स यहाँ पे क्या होगा ना, हम लोगों का ये पी टाइप है जिसमें हम लोगों का क्या है, मेजॉरिटी में होल है, एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी में माइनॉरिटी क्या हो जाएगा, एन टाइप का होल्स हो जाएगा एंड पी टाइप का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जंक्शन था। अब जंक्शन के पास हम लोगों का क्या हुआ था,
मैं अगर ये वाला एग्जांपल लेती हूँ डायग्राम के थ्रू, ये पी टाइप था, ये एन टाइप था। तो हम लोग का पी टाइप में क्या हो रहा था, पॉजिटिव था मेजॉरिटी में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया, लैक ऑफ चार्ज हो गया। तो इस रीज़न को हम लोग क्या बोल रहे थे, डिप्लीशन रीज़न बोल रहे थे। डिप्लीशन रीज़न इज़ द रीज़न हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे हम लोगों का क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, लैक ऑफ चार्ज है। When the body emerge from the positive surface or from the surface, that body act like a positive ion। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन है वो क्या, उसका टेंडेंसी क्या है, वो होल्स के साथ रिकम्बाइन होगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या अगर किसी बॉडी से हम लोगों का एनर्जी, मतलब किसी भी मटेरियल से चार्ज निकलेगा तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो जंक्शन के साइड क्या हो जाएगा, हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और कोई भी बॉडी अगर मटेरियल या बॉडी एक्सेप्ट करता है चार्ज तो वो बिकम्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मीन्स व्हेन बॉडी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन देन इट विल एक्ट एज ए नेगेटिव आयन। सो यहाँ पे मटेरियल के साइड में क्या हो जाएगा, हम लोगों का सारा नेगेटिव आयन हो जाएगा। सो हम लोगों का ये डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, टर्मिनल के राइट साइड में सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि एन मटेरियल क्या किया है, हम लोगों का इलेक्ट्रॉन्स दिया है। सो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर चार्ज देता है कोई भी बॉडी तो वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और कोई बॉडी या मटेरियल चार्ज एक्सेप्ट करता है तो वो सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो बैरियर है या डिप्लीशन लेयर बोलेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग का डिप्लीशन लेयर है, ये टर्मिनल के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स और ये जो है पॉजिटिव आयंस और यहाँ पे जो नेगेटिव आयंस है, उसके चलते क्या होगा, हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। दिस प्लस एंड दिस माइनस विल क्रिएट ए इलेक्ट्रिक फील्ड towards the direction right to left, because electric field क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो अब इसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, मान लीजिए उसका डिस्टेंस कितना है, d है। तो हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों का डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, और वोल्टेज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है और ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये प्लस और माइनस का एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब हम लोग किसी भी डिवाइस में बैटरी लगाएंगे तो हम लोगों को क्या होता है, नॉर्मली बैटरी का पोटेंशियल क्या करता है ना, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो हम लोगों का क्या होगा, करंट क्रिएट होगा। विच मीन्स बिकॉज ऑफ बैटरी चार्ज पार्टिकल मूव्स एंड करंट क्रिएट। तो बेसिकली जब हम लोग क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं तो वो हम लोगों को क्या करता है, सपोर्ट करता है करंट को फ्लो करने में। पर यहाँ पे जो हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है जंक्शन में डिप्लीशन लेयर का, तो वो हम लोग का सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। कैसे कर रहा है अपोज, अगर हम लोगों का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पी साइड में हम लोग का होल्स है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दिस वन मूव करना चाहेगा जंक्शन के पी साइड में, तो यहाँ पे जो हम लोगों का क्या है, जंक्शन में जो नेगेटिव आयंस है वो क्या करेगा ना,
इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकेगा, रिपेल करेगा। ये यहाँ पे क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। उसी तरह पी टाइप में जो होल्स है इसको एन टाइप आने से रोकेगा। कौन रोकेगा, जो जंक्शन के साइड में हम लोग का पॉजिटिव आयन, तो जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये वाला हम लोग का नेगेटिव आयन उसको रिपेल कर रहा है, तो वो नहीं फ्लो हो पा रहा। अगर इधर से हम लोगों का होल्स इधर जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों का जो पॉजिटिव आयन है वो रिपेल कर रहा है, तो इस वजह से हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली हम लोग का ये डिप्लीशन लेयर क्या किया ना, अपोज किया, मतलब करंट फ्लो होने नहीं दिया। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे ना, बैरियर हुआ उसके लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। सो दैट डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर एक्ट एज ए बैरियर टू द फर्दर मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द जंक्शन. So the electric field is a barrier to the free electron in the n region. There exists a potential difference that is denoted by V or V0 across the depletion region. This is called potential barrier. मतलब ये जो हम लोग का डिप्लीशन लेयर था ये क्या कर रहा है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन फ्लो होने नहीं दे रहा है, तो ये एज ए बैरियर काम कर रहा है। तो इसको हम लोग का जो पोटेंशियल था तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बैरियर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इधर V से और V0 से। तो हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव को हम लोग ज़्यादा कंसीडर कर लिए और नेगेटिव को क्या कर लिए हम लोगों, उससे कम। तो ये जो हम लोगों का है, तो ये पॉजिटिव साइड हो गया हम लोग का हायर पोटेंशियल, ये हो गया हम लोग का लोअर पोटेंशियल। तो इसके बीच में एक लाइन होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो हो गया हम लोगों का d हो गया, और इसका जो क्या बोलते हैं डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोगों का इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरह होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उसका डिफरेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया d, और दोनों में जो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल में जो डिफरेंस हुआ उसको हम लोग बोलेंगे potential difference. For germanium, potential barrier is V0 is about 0.3 volt, and for silicon, barrier potential is 0.7 volt. Now discuss biasing of p-n junction. In electronic, the term bias refers to the use of DC voltage to establish certain operating conditions for an electronics device. There are two types of biasing, forward bias and reverse bias. First, we will discuss about the forward bias. So this is the p-type material and this is the n-type material. Here is the junction. So this is the p-n junction diode. P is connected to the positive terminal of the battery and n region is connected to the negative terminal of the battery. This is the forward biasing. तो हम लोग जो एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई किए हैं उसका हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि क्या होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इंटरनली जो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल बैरियर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द राइट टू लेफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है, जो एक्सटर्नल बैटरी दी है उसका डायरेक्शन हम लोग का राइट टू लेफ्ट है, तो दोनों क्या हो रहा है हम लोगों का
तो दोनों का बेसिकली हम लोग का ये डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोज हम लोगों का 15 न्यूटन पर कूलम है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सपोज 30 न्यूटन पर कूलम है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, which means electric field decreases because of external electric field and because of internal electric field, both are opposite in direction. Because of opposite direction, the overall electric field decreases. Once the electric field decreases, potential barrier is also decreases. मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो यहाँ पे सपोज हम कंसीडर किए थे पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज 50 है, सेकंड हम लोगों का कितना है, 30 है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम लोग का 20 न्यूटन पर कूलम हुआ। तो ओवरऑल हम लोग का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो हम लोगों का पोटेंशियल बैरियर इज ऑल्सो डिक्रीजेस। पोटेंशियल बैरियर कम होगा तो हम लोगों का डिप्लीशन लेयर क्या होगा, कम हो जाएगा। ये हम लोगों का क्या था इनिशियली, पहले हम लोगों का पोटेंशियल बैरियर कैसे था, पॉजिटिव के लिए हम लोगों का क्या था, हायर पोटेंशियल, नेगेटिव के लिए लोअर पोटेंशियल। ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बैरियर हो गया। तो इनिशियली हम लोगों का ऐसे था, जब हम लोग बैटरी कनेक्ट किए तो हम लोग का डिप्लीशन लेयर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो ये हम लोग का शॉर्ट हो गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, हम लोगों का कम हो जाएगा। तो हम लोग का पोटेंशियल बैरियर कम होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर का जो हाइट है वो कम होगा, तो हम लोगों का डिप्लीशन लेयर जो पहले ज़्यादा था वो अब हम लोगों को क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग का डिप्लीशन लेयर कम होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हम लोगों का इजीली मूव कर सकता है टुवर्ड्स दी होल्स। मतलब यहाँ पे हम लोग को पहले जितना एनर्जी चाहिए था, रिक्वायर्ड था वोल्टेज, तो उतना अब नहीं चाहिए, अब हम लोगों को लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ताकि ये इलेक्ट्रॉन हम लोगों का पी साइड से एन साइड से पी रीजन को जा सके। तो जब हम लोग का इलेक्ट्रॉन मूव होगा टुवर्ड्स दी होल्स, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, डिफ्यूज होगा। तो डिफ्यूज होगा तो फिर हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। सपोज हम लोग क्या किए हैं ना, जर्मेनियम मटेरियल कंसीडर किए हैं, तो उसका पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, 0.3 होता है। तो हम लोग जो क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे 0.3 से ज़्यादा देना होगा, ताकि अगर 0.3 से सपोज 0.1 दिए तो वो उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला, नहीं मिला। तो अगर हम 0.3 से ज़्यादा देंगे तो उसको क्या होगा, एनर्जी मिलेगा, देन इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द होल्स एंड डिफ्यूजेस, देन करंट फ्लो इन दिस पीएन जंक्शन डायोड। So in the case of forward bias, because of the opposite direction of electric field, the depletion layer gets short and potential barrier decreases, or height of potential barrier decreases. When we connect a battery in forward bias, the current flows in the PN junction diode. This is the operation of forward bias in PN junction diodes. Now going to the reverse bias. In reverse bias, positive of battery is connected to the N-type material and negative of the battery is connected to P-type material.
that is anode, and this one is the cathode. Free electron in N region are drawn towards positive of battery, holes in P region are drawn towards negative of the battery. तो यहाँ पे हम लोगों का क्या था, डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हुआ था। तो डिप्लीशन लेयर के क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लोगों का पॉजिटिव प्लेट था, सारा पॉजिटिव आयंस था इस प्लेट के साइड में, और इस टाइप इधर क्या था हम लोग का सारा नेगेटिव आयंस था। तो बेसिकली जब हम लोग पी टाइप में नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट किए और एन में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी किए, तो हम लोगों का इसका डायरेक्शन क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट हो गया। और जो इंटरनल पोटेंशियल बैरियर था उसका हम लोगों का डिफरेंस डायरेक्शन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब हम लोगों का दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अगर एक का हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 10 न्यूटन पर कूलम और दूसरा का होगा ऑल्सो 10 न्यूटन पर कूलम, तो टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हम लोगों का 20 न्यूटन पर कूलम होगा। मतलब यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर जो था हम लोगों का वो ज़्यादा होगा। तो पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा होगा तो हम लोग का डिप्लीशन लेयर का साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो डिप्लीशन लेयर हम लोग का अगर ज़्यादा होता है तो करंट हम लोग का कम से कम फ्लो करेगा, क्योंकि इस रीजन से इलेक्ट्रॉन इस रीजन को मूव नहीं कर पाएगा। तो इनिशियली हम लोगों का क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल था, हायर पोटेंशियल, दिस वन इज द लोअर पोटेंशियल, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया पोटेंशियल बैरियर। तो जब हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, सेम डायरेक्शन है, तो पोटेंशियल बैरियर का क्या हो गया, हाइट ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया हम लोगों का ज़्यादा हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर करता भी है तो ड्यू टू दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जैसे हम लोग का ये क्या है, एन रीजन है, वहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी क्या हो जाएगा, कुछ होल्स हो जाएगा। और यहाँ पे पी टाइप में क्या है हम लोग का, मेजॉरिटी हम लोगों का हो जाता है होल्स, माइनॉरिटी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हम लोग का माइनॉरिटी है वो अगर हम लोग का इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ जो टर्मिनल के पास हम लोगों का क्या है पॉजिटिव चार्ज, वो अट्रैक्ट करेगा इस वजह से। तो यहाँ पे कुछ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे क्या है हम लोग का इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव, जो कि हम लोग का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, उस वजह से हम लोगों को क्या होगा यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, जो कि हम लोगों का क्या होता है, माइक्रो में होता है। और फॉरवर्ड बायस में जो हम लोग का मेजॉरिटी के चलते चार्ज क्रिएट हो रहा था, करंट हम लोग का फ्लो कर रहा था, वो मिली में होगा। सो इन रिवर्स बायस कंडीशन करंट फ्लो रिड्यूसेस टू 0 और current conduction takes place due to the minority charge carrier or current generated due to the minority charge carrier. So this is the working of reverse bias PN junction. VI characteristics of diode. ये क्या है हम लोगों का, फॉरवर्ड बायस के लिए है, ये रिवर्स बायस के लिए वोल्टेज वर्सेस करंट। तो हम लोगों का इनिशियली फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था, करंट फ्लो नहीं कर रहा था। अगर हम ये 0.3 कंसिडर किए तो मैं 0.1 दी तो करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। 0.2 दी, करेगा, नहीं करेगा। तो वो कब करेगा, जब 0.3 से स्टार्ट करेगा वो कंडक्ट करना, या 0.3 से ज़्यादा देंगे। तो यहाँ पे इनिशियली हम लोग का करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो जब हम लोग का करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ एट द पॉइंट 3, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इस पॉइंट को नी वोल्टेज। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है
कहाँ से हम लोग का जर्मेनियम में करेगा? 0.3 से। अगर हम लोग सिलिकॉन लिए हैं तो 0.7 से। हम लोग का रिवर्स बायस में क्या हो रहा था ना, करंट फ्लो कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था। तो हम लोग क्या हो रहा था, जो करंट फ्लो किया ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज एरिया, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर हम लोग का ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो जब तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल जो बैटरी लगाए हैं इसमें अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, एक सडन अमाउंट ऑफ क्या देंगे, चार्ज देंगे, तब जा कर के ये क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा सडनली। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये रिवर्स बायस है इसलिए ये साइड हो गया, तो हम लोगों को क्या हो रहा था, करंट नहीं हुआ, तो सडनली हम लोगों का करंट क्या हुआ, फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन, और इसको एवलेंस रीजन भी बोलेंगे। तो ये हो गया हम लोग का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एप्लीकेशन ऑफ डायोड. The most common important application of diode is the rectification of AC power to DC power. Using the diodes, we can construct different type of rectifier circuit, half wave rectifier or full wave rectifier circuit. Diodes in clipping circuit. Clipping circuit are used in FM transmitter where noise peaks are limited to a particular value so that excessive peak are removed from them. Diode in clamping circuit. A clamper circuit is used to shift or alter either positive or negative peak of an input signal to a desired level. Clamping circuit can be positive or negative, depends on the diode configuration. Diodes and logic gate. Diodes can also perform digital logic operation. Low and high impedance state of logic switch are analogous to the forward and reverse bias condition of the diode. So the diode can perform logic operations such as AND, OR, etc. Diodes in voltage multiplier circuit. Voltage multiplier circuit consists of two or more diode rectifier circuit which are cascaded to produce a DC output voltage which is equal to the multiplier of the applied input voltage. Diodes in reverse current protection. The reverse polarity or current protection is necessary to avoid the damage that occurred due to connecting the battery in a wrong way or reversing the polarities of the DC supply. Thank you.